Good evening, students. Hello, everyone. Now, today we'll start with a new chapter of our physics, that is gravitation. Third chapter of physics, that is gravitation. Now, in your earlier chapters of physics, that is first is motion and second is force and laws of motion. In that chapter, we have studied that force is required. A force is required to produce motion. To produce motion. In our earlier chapters, हमने देखे कि एक force it is required to produce motion in a body. To produce motion in a body. Now, but you have observed that if we are holding any object in our hand and suddenly if you are dropping that object, the object falls down towards the surface of the earth. ठीक है? Any object, if you are dropping from your hand, it will fall down to the surface of the earth. Now, what is the force? What is the force which is attracting that ball? Which is attracting that ball or that object towards the surface of earth. Towards the surface of earth. ठीक है? What is that force due to which each and every object around us is attracted towards the center of the earth? That is gravity. That is gravity. The force with which each and every object around us is attracted towards the center of the earth, that is gravity. Now you are familiar with the word gravity. You are familiar with the word gravity. This gravity word was first actually experienced or coined by a scientist, that is Newton. Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton. Newton जो है वो father of physics. He is the father of physics, है ना? न्यूटन बाबा को हमेशा प्रणाम करना पड़ता है, तो फिजिक्स के कंसेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं एकदम. समझ में आ रहा है? तो सर आइजैक न्यूटन जो है, he was living in London, and in the year 1665, when he was only 23 years old, it was termed in many books that it was a very short story about Newton. He was sitting around a tree, under a tree, in an apple tree, under an apple tree. ठीक है? He was sitting under an apple tree, and suddenly an apple fall down on his head. So it is a normal phenomena. We all are experienced such phenomena. If you are standing under a tree, है ना? Some leaves may fall down on our body, है ना? Or we are seeing objects falling down towards the surface of earth. For us, it was a general phenomena, a natural phenomena. But for Newton, it was a different phenomena, or he looked towards that phenomena as a different thing. He thought that कि वो एप्पल जो है वो नीचे ही क्यों आया, वो ऊपर क्यों नहीं गया, वो राइट में नहीं क्यों गया, वो लेफ्ट में क्यों नहीं गया. ठीक है? तो न्यूटन ने सोचा, क्योंकि भगवान ने उसको बहुत तेज दिमाग दिया था, है ना? इसलिए अपने लिए जो नॉर्मल बात थी, उसने उस चीज को, उस पर्टिकुलर इवेंट को बहुत ही साइंटिफिकली लिया और प्रूफ किया या कॉइन किया अ टर्म दैट इज ग्रेविटी. ठीक है? ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ग्रेविटी इज द फोर्स विथ विच each and every object is attracted towards the center of the earth. ठीक है? Now, फिर धीरे धीरे उसने ग्रेविटी तो बताया, फिर धीरे धीरे उसने बताया कि each and every object having mass, each and every object having mass attract each other. ठीक है? अर्थ तो अट्रैक्ट कर रहा ही है हर ऑब्जेक्ट को अपने तरफ,
लेकिन हर बॉडी जिसमें मास है वो अट्रैक्ट करता है दूसरे बॉडी को जिसमें मास है, ठीक है। टू बॉडीज हैविंग मास अट्रैक्ट ईच अदर। There is a force of attraction between each and every body having masses on the surface of the earth, ठीक है। On the surface of the earth, even in the space में भी जो bodies है जैसे कि earth है, sun है, moon है, there are different planets, they are attracted towards each other, they exert a force on each other. There is a gravitational force of attraction between each and every body having mass, each and every body having मास, ठीक है। तो सरफेस पे अगर दो बॉल रखे हैं, है ना, सरफेस पे अगर दो बॉल रखे हैं, एक सपोज 1 kg का है और दूसरा सपोज 2 kg का है ना, दो बॉल है अगर सरफेस पे, तो अपने को वो दिखते हैं क्या कि एक दूसरे की तरफ को अट्रैक्ट कर रहे हैं? नहीं, ठीक है। इफ देयर आर 2 persons स्टैंडिंग, वी एंड आवर फ्रेंड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, we are not seeing that the two bodies are attracting towards each other. नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो पूरा वर्ल्ड जो है वो अनस्टेबल हो जाता है ना। अपन जो है वो सिर्फ अर्थ सरफेस पे अट्रैक्टेड है, एक बॉडी दूसरे बॉडी से अट्रैक्टेड है, बट दैट फोर्स इज नॉट विजिबल टू अस, दैट फोर्स इज नॉट विजिबल टू अस। व्हाई? बिकॉज द masses of the two bodies, the masses of the two bodies are very small, or we can say that the difference between the masses of the two bodies is very small, therefore the force of attraction between the two bodies is not experienced, ठीक है, समझ में आया? is not experienced, है ना। अर्थ के कंपैरिजन में अर्थ के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो सब अपने को अर्थ की तरफ गिरते हुए दिखते हैं, अट्रैक्ट होते हुए दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि अर्थ का मास जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज है। अर्थ इज अ ह्यूज मास एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कंपैरेटिवली वेरी वेरी स्मॉल इन मास। इसलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ एक्सर्ट कर रही है दूसरे ऑब्जेक्ट्स में, वो अपने को बराबर दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन अर्थ के ऊपर जो मासेस है उनमें लार्ज डिफरेंस नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हुए हमको नहीं दिखाई देते, बट ईच एंड एवरी बॉडी हैविंग मास अट्रैक्ट्स द अदर बॉडी, ठीक है। नाउ जैसे स्पेस में अपने को पता है कि प्लैनेट्स जो है they revolve round the sun, planets revolve round the sun. Up we know that the mass of planets is also very large and the mass of sun is also very large. Therefore the gravitational force of attraction between the sun and the planet is very large, and hence planets revolve round the sun in circular orbits. Hence planets revolve round the sun in circular orbit. क्योंकि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनका मास बहुत ज्यादा लार्ज है, इसलिए प्लैनेट्स जो है वो सन के आजू बाजू रिवॉल्व होते हैं। या सपोज हम अर्थ कंसिडर करें तो अर्थ के आजू बाजू कौन रिवॉल्व होता है? मून इज द सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, दैट इज प्लैनेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि अर्थ का भी मास बहुत लार्ज है और मून का भी मास जो है वो बहुत लार्ज है, इसीलिए जो है अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, और जिसकी वजह से मून जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के सराउंडिंग घूम रहा है। अब यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है ना? व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स each and every object is stable on the surface of earth, ठीक है। Due to gravitational force of attraction, the atmosphere, that is air holds above the surface of earth,
अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, जो एयर है, एयर इज सराउंडिंग द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम अर्थ के ऊपर स्टेबल है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व होते हैं अराउंड द सन। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट्स revolve around the planets. Satellites revolve around the planets due to gravitational force. The tides in the sea, tides है ना, tides पता है ना तुम लोगों को, जो समुद्र में होती है ना, हाई टाइड एंड लो टाइड। पानी आता है और हाई टाइड जाता है, लो टाइड। जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स है समुद्र में, दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एंड द अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ द सी। ठीक है, समझ में आ रहा? ऑल ऑफ यू गॉट इट? देन these are the rain falling towards the surface of the earth। रेन जो है वो नीचे क्यों आ रही है? क्यों? क्योंकि अर्थ रेन को अट्रैक्ट कर रहा अपने तरफ। सो बहुत सारे जो नेचुरल फिनोमेना है वो सब किसकी वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से। सो यू नाउ हैव अंडरस्टूड द ग्रेविटेशनल फोर्स क्लियरली। नाउ ऑल दीज मतलब न्यूटन हैव परफॉर्म वेरी एक्सपेरिमेंट्स, है ना। ही गेव न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसने बताया कि अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वो है ग्रेविटी, और हर एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ के ऊपर है वो भी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब उसने ये फोर्स कितना है ये कैलकुलेट करने के लिए भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और वो एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे कुछ उसने लॉ दिया। ठीक है, वो जो लॉ दिया उसने कि हाउ वी कैन मेजर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज वाज गिवन बाय Newton's universal law of gravitation। Newton's universal law of gravitation। Newton's universal law of gravitation। ठीक है, उसके लिए सपोज किया उसने कि सपोज देयर आर टू बॉडीज, सपोज देयर आर टू बॉडीज M1 and M2। Suppose there are two bodies M1 and M2. They are separated by distance r from each other. They are separated by distance r from each other. Now this M1 जो है, it exerts force on M2 in this direction। M1 जो है वो M2 पे force exert करेगा ये डायरेक्शन में। M2 जो है वो M1 पे force exert करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, but the force between them is only F, है ना, but the force between them is only F। important point, the force is equal, एक ही फोर्स है, ये जो फोर्स है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ऐसा अपन बोल सकते हैं, है ना। इन दोनों का जो अट्रैक्टिंग फोर्स है वो एक ही फोर्स है F। we cannot say it as F1 और F2। क्यों? क्योंकि एक्शन और रिएक्शन जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हम दो फोर्स नहीं कंसीडर कर रहे, M1 और M2 के बीच में एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है ना। अगर सपोज दो चार्जेस रहते हैं जैसे कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस है, तो ये चार्जेस जो है अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, अगर सपोज सेम चार्जेस है पॉजिटिव पॉजिटिव तो वो रिपल्शन शो करेंगे। यहाँ पे कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन ऐसा कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, और वो फोर्स जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रही है दैट इज इक्वल, दैट इज इक्वल, वी आर डिनोटिंग इट एज F। नाउ द फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज M1 and M2 कैन बी कैलकुलेटेड by Newton's universal law of gravitation। According to Newton's universal law of gravitation, every body in the universe, every body in the universe, in the universe attract every other body, attract every other body with a
force. According to Newton's universal law of gravitation, every body in the universe attract every other body with a force which is directly proportional, to the product of their masses, and inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है, ये हो गया इसका स्टेटमेंट. न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ये हो गया स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? न्यूटन ने क्या बताया कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स. हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses. दो बॉडीज है m1 and m2. They are exerting a force over each other. That force is directly proportional to the product of their masses. है ना? एक m1 है और एक m2 है. इसका मास m1, इसका मास m2. तो according to Newton's universal law of gravitation, F is directly proportional to m1 into m2, the product of their masses. And the force is inversely proportional to the square of the distance between them. मतलब उनके दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है? r. ये फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है. अब इन दोनों को इक्वेशन को हम ज्वाइन करते हैं. अगर सपोज इसको मैं इक्वेशन 1 देती हूँ और इसको इक्वेशन 2 देती हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को हम ज्वाइन करेंगे तो हमको एक थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा. दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर. F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. है ना? इसको हम अगर अलग से देखते हैं तो जितना ज्यादा मास रहेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यही बताया मैंने तुमको पहले भी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अर्थ के ऊपर हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन वो अपने को दिखाई नहीं दे रहा ड्यू टू द लेस मासेस. लेकिन अर्थ का बहुत ज्यादा लार्ज मास है, उसके तरफ सब अपने को अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं क्योंकि अर्थ का मास जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज है ना. अर्थ का मास कितना है? 6 into 10 to the power 24 kg. 6 into 10 to the power 24 kg है अर्थ का मास. और उसके कंपैरिजन में उसके ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट है उनका मास हम कंसिडर करेंगे, है ना, तो कितना ज्यादा हो जाएगा. अगर अपन ने एक जगह मास यहाँ पे सपोज अर्थ रखे और यहाँ पे जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास रखते हैं हम, उसके साथ में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना. इट कैन बी ऑफ 10 kg, इट कैन बी ऑफ 50 kg, इट कैन बी ऑफ 100 kg. तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते ही चले जाएगा. ठीक है. नाउ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब ये डिस्टेंस को हम अगर बढ़ा देते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा. अगर हम मासेस को पास में लाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. जितना ज्यादा मास उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा. जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम. जितना डिस्टेंस कम उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा. ठीक है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो तुमको समझता ही है बेटा, है ना. अब देखो यहाँ पे अगर हमको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो ठीक है, यू माइट हैव बीन
थिंकिंग दैट व्हाई वी शुड रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन ईच एंड एवरी टाइम, है ना। प्रोपोर्शनलिटी साइन तो हटाना ही पड़ेगा ना। देखो सपोज अगर हम बोलेंगे कि 7 is directly proportional to 6.5, सपोज 7 is directly proportional to 6.5। अब ये 6.5 को अगर 7 जितना ही लाना है तो अपने को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी सब्सटेंस, किसी और एक वैल्यू से, है ना। अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे सपोज, है ना, 2 is directly proportional to 4, 2 is directly proportional to 4, या 4 is directly proportional to 2, है ना। अगर सपोज लिखती हूँ 4 is directly proportional to 2, अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है, मेरे को इक्वल टू लाना है, तो मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वैल्यू को, तो हो जाएगा ये 4 इक्वल टू 4, है ना। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए, दैट इज मैथमेटिक्स, है ना, तुमको पता होगा ये। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हर बार हमको एक कांस्टेंट लगाना है। यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के एक कांस्टेंट लगा रहे हैं, एंड दैट कांस्टेंट इज कैपिटल G, दैट कांस्टेंट इज कैपिटल G। F is equals to G into M1 into M2 upon R square। F is equals to G into M1 into M2 upon R square। This is the formula to calculate the gravitational force। This is the formula to calculate the gravitational force between two bodies, between two masses। ठीक है। अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने बताया तुमको F is directly proportional to M1 into M2। F is directly proportional to M1 into M2। अगर हम मास को डबल कर देंगे तो फोर्स भी डबल हो जाएगा, अगर हम मास को हाफ कर देंगे तो फोर्स भी हाफ हो जाएगा। वैसे ही फोर्स जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। सपोज अगर रेडियस जो है या जो मासेस के बीच में डिस्टेंस है वो सपोज 1 है, इनिशियली द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस इज 1 मीटर। इफ यू आर डबलिंग दैट, मतलब हम अगर 2 मीटर कर रहे हैं, सपोज 2 मीटर कर रहे हैं, है ना, पहले 1 मीटर पे था, अब हमने 2 मीटर कर दिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर कर दिए हमने, तो क्या होगा 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, है ना, दैट विल बी फोर्स विल बिकम 1/4, है ना, 2 2 4 हो जाएगा, तो फोर्स विल बिकम 1/4 इफ वी आर डबलिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, है ना। पहले 1 मीटर था, अब हमने 2 मीटर कर दिए, 2 मीटर करे मतलब हमने डिस्टेंस डबल कर दिए। जब हम डिस्टेंस डबल कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में कितना हो जा रहा है 1/4 हो जा रहा है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितना हो जा रहा है 1/4। इफ अगर हम उसको ट्रिपल कर देंगे, अगर हम डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं ट्रिपल, मतलब पहले 1 मीटर था अब हमने 3 मीटर कर दिए, तो कितना हो जाएगा, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 9, मतलब 1/9 हो जाएगा। समझ में आएगा? ये भी एक 1 मार्क का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ये तो सिंपल है कि मासेस को डबल किए तो फोर्स भी डबल, मासेस को हाफ किए तो फोर्स भी हाफ। ये तुमको याद रखना है कि इफ वी आर डबलिंग द रेडियस बिटवीन द टू मासेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स 1/4। इफ वी आर ट्रिपलिंग द डिस्टेंस, है ना, increasing 3 times the distance between the two masses, the force of attraction becomes 1/9, force of attraction becomes 1/9। ठीक है, तो हमको एक यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते किसी भी दो बॉडीज के बीच में का, और वो उसका इक्वेशन हमको क्या मिला कि F is equals to G into M1 into M2 upon R square, where F is the gravitational force, M1 and M2 are the masses between the two bodies, R is the distance between the two bodies, and G is the gravitational constant, and capital G is the gravitational constant। ठीक है, एक कांस्टेंट लगाया हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए, और वो कांस्टेंट है कैपिटल G और वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये न्यूटन ने बताया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब फोर्स की एसआई यूनिट तो तुमको पता है न्यूटन,
The unit of force is Newton. Now, if we want to calculate gravitational constant, है ना, इस इक्वेशन से हमको अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g निकालना है तो कैसे करेंगे हम? g इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ठीक है, ये स्टेप समझ में आई। अगर हमको g निकालना है तो हम क्या करेंगे? f इंटू आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इधर चले जाएगा, m1 इंटू m2 नीचे आ जाएगा। तो g अगर कैलकुलेट करना है तो ये इक्वेशन है g के लिए। क्या है g के लिए इक्वेशन? g इज इक्वल्स टू f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 11th स्टैंडर्ड बेटा। बेसिक ये चैप्टर जो है वो भी 11th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर की शुरुआत ही यहाँ से होती है। दिस इज अ बेसिक थिंग, बट इससे बहुत ज्यादा 5 टाइम्स मोर है 11th में ये चैप्टर जो है। लेकिन तुमको अगर बेसिक चीजें अच्छे से पता होंगी तो आगे का 11th स्टैंडर्ड तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, अब देखो अपने को एक इक्वेशन मिला g इज इक्वल्स टू क्या मिला अपने को? g इज इक्वल्स टू f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, m1 इंटू m2। अपन ने देखे दो मासेस m1 और m2, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, है ना। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है दैट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टू मासेस। सपोज किया कि सपोज द टू मासेस आर ऑफ 1 kg, the two masses are of 1 kg and they are separated by distance of 1 meter। ठीक है, क्या सपोज किया कि दो मासेस जो है उनके दोनों का मास है 1 kg और वो दोनों जो है वो डिस्टेंस 1 मीटर से सेपरेटेड है। अब ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में अगर रख देते हैं तो क्या मिलेगा? g इज इक्वल्स टू f इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 1। ठीक है, यानी at that time g is equals to f, at that time g is equals to f, है ना। मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। at that time gravitational constant is equal to gravitational force, is equal to gravitational force provided क्या? provided the masses are of 1 kg and the distance between them is of 1 meter। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम डिफाइन कर सकते है ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम डिफाइन कर सकते कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल to the gravitational force between two unit masses, between two unit मैंने 1 unit यानी क्या होता है 1, between two unit masses kept at unit distance from each other, kept at unit distance from each other। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is numerically equal, more proper, is numerically equal to the gravitational force, is numerically equal to the gravitational force between two unit masses, kept at unit distance from each other, kept at unit distance from each other। ठीक है, समझ में आ रहा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है हमने उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल कर दिया। कैसे किया? अपन ने मासेस भी 1 kg ले लिया और डिस्टेंस भी 1 मीटर ले लिया, तो उस समय g इक्वल टू f हो गया। एट दैट टाइम g इज इक्वल्स टू f। ठीक है, अब
अपन को एसआई यूनिट अगर निकालना है जी की, इफ यू वांट टू फाइंड द एसआई यूनिट ऑफ जी, हाउ वी विल फाइंड? फोर्स की क्या है? फोर्स की है न्यूटन, ठीक है। डिस्टेंस की है मीटर, तो डिस्टेंस का हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए। और मास की है केजी, m1 इंटू m2 यानी केजी इंटू केजी हो जाएगा केजी स्क्वायर, केजी इंटू केजी हो जाएगा केजी स्क्वायर। सो एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो अपॉन है इसको हम पर लिखते ऐसा, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। समझ में आया? ठीक है, ऑल ऑफ यू गॉट इट। अब यहाँ पे क्या है? G इज इक्वल्स टू एफ, कब? जब मासेस भी एक एक केजी है और डिस्टेंस भी उसका 1 मीटर है। द वैल्यू ऑफ G was found by Newton. The value of G was found by Newton and he gave the value of G as 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वैल्यू जो है वो जी की भी एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट किया न्यूटन ने और दिया क्या? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। या तो इसको न्यूमेरिकल्स के लिए 6.7 ले लेते हैं, है ना, न्यूमेरिकल्स के लिए 6.67 ना लेके क्या लेते हैं? 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया ऑल ऑफ यू? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है ना? ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी यानी क्या? जो फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट कर रही हर एक ऑब्जेक्ट को अपने तरफ, दैट इज ग्रेविटी। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स बिटवीन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैविंग मास, बिटवीन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैविंग मास, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स के एप्लीकेशंस क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हर एक ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के ऊपर स्टेबल है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही एटमॉस्फेयर, एयर जो है वो अर्थ के ऊपर होल्ड करी हुई है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण रेन फॉलिंग डाउन, द रिवर्स फॉलिंग टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स इन द सी इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इन द स्पेस, द रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, the rotation of satellites around the planets, all these are the applications due to the gravitational force of attraction, the gravitational force of attraction। ठीक है, फिर हमने देखा कि न्यूटन ने बताया कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से। that force is directly proportional to the product of the masses and is inversely proportional to the square of the distance between them, and is inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया ये फिनोमेना? ऑल ऑफ यू हैव यू गॉट इट? अब सपोज हम एक प्रॉब्लम करते हैं, ये न्यूमेरिकली हमको देखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कैसे बढ़ते जाता है। हाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द मास, बाय इंक्रीजिंग द मास। जैसे जैसे बॉडीज का मास बढ़ते जाता है उनके बीच में का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ते जाता है। उसके लिए हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, देखो, कैलकुलेट, सपोज इफ यू आर राइटिंग कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स, calculate the gravitational force due to earth on a ball of mass 1 kg। calculate gravitational force due to earth on a ball of mass 1 kg lying on its surface, lying on its surface। ठीक है, गिवन क्या क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.7 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास जो है, मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम, मास ऑफ अर्थ को हम कैपिटल एम से लेंगे
क्योंकि वो लार्ज बॉडी है इसलिए, क्योंकि वो लार्ज बॉडी है इसलिए हम ग्रेविटेशन मास ऑफ अर्थ को कैपिटल M लेंगे, दैट इज 6 into 10 to the power 24 kg. 6 into 10 to the power 24 kg. Then रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ को हम कैपिटल R से लेंगे एंड दैट इज 6.4 into 10 to the power 3 किलोमीटर्स. 6.4 into 10 to the power 3 किलोमीटर्स ये हो गया. और मास ऑफ ऑब्जेक्ट को हम स्मॉल m लेंगे एंड दैट इज 1 kg. दैट इज 1 kg. ठीक है, ये पूरे वैल्यूज जो है हमको इसमें रखना है. F इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू m अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, तो हम F इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 लिखेंगे इंटू मास ऑफ अर्थ क्या है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 अपॉन रेडियस जो है ये किलोमीटर्स में है तो अपने को मीटर्स में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. मीटर्स में कन्वर्ट करना है मतलब मल्टीप्लाई बाय 1000, मतलब 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 है ना. मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे मतलब ये हो जाएगा क्या 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर. किलोमीटर से अपने को मीटर में उसको कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 तो वो हो जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स. 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स. ठीक है, ये वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 होल स्क्वायर. क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट. जो पावर्स है वो पूरे एक साइड कर लेंगे हमको. 6.7 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -11 प्लस 24. -11 प्लस 24 हो जाएगा ये. इसको 6 को हमने इधर कर लिया. फिर ये स्क्वायर है इसलिए हम लिखेंगे 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 2 12 यानी यहाँ पे आ जाएगा 12. ठीक है, समझ में आया. तो अब देखो यहां से नेक्स्ट स्टेप, यहां से देखो F इज इक्वल्स टू क्या होगी 6.7 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -11 प्लस 24. -11 प्लस 24 जो है वो क्या हो जाएगा और नीचे का पूरा सॉल्व करके जो है ये हो जाएगा 30. -11 प्लस 24 विल गिव यू 30 और नीचे जो 12 है ये 10 टू द पावर 12 इसको हम ऊपर ले जाएंगे. यहाँ पे हो जाएगा -12 अपॉन 6.4 इंटू 6.4. ध्यान से देखना ये स्टेप बेटा. ये जो पावर्स है 10 टू द पावर -11 10 टू द पावर 24 इसको हमने यहाँ पे लिख लिए -11 प्लस 24. उसका आंसर आ गया था 30 इन दोनों का. फिर नीचे जो 10 टू द पावर 12 है उसको हम ऊपर लेके चले गए तो हो गया 13 माइनस 12. ठीक है, समझ में आ गया. अब मैं यहाँ नीचे नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ ऊपर लिखती हूँ. यहाँ पे F इज इक्वल्स टू देखो ये 6.7 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 माइनस 12 विल बी 1. 6.7 ये पॉइंट जो है वो चले जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 67 इंटू 6. ठीक है, और नीचे आ जाएगा 6.4 इंटू 6.4. ठीक है, यहाँ पे हमको मिलेगी वैल्यू जो है दैट विल बी 402 अपॉन 40.96. फिर F हो जाएगा हमारा, ऊपर हम 2 0 डाल देते हैं, दैट विल बी ये पॉइंट है, पॉइंट को हमको हटाना है तो ऊपर 2 0 डाल दी मैंने और आ गया ये 4096 यहाँ पे. इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे अगर हम तो हमको आंसर मिलता है 9.8 न्यूटन. ठीक है, क्या मिला हमको 9.8 न्यूटन. मतलब देखो जब मासेस यूनिट की है ना ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अगर हमको निकालना है तो हमको
ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम, G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R²। ठीक है, F इज इक्वल्स टू G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R²। अगर सपोज मासेस 1 kg है और डिस्टेंस भी 1 मीटर है, उस समय फोर्स कितना था? 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन हो जाएगा। ये ध्यान में आएगा तुम्हारे, वेरी इंपॉर्टेंट ये ध्यान में लाना है तुमको कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जब मासेस बहुत ही कम थी, M1 इंटू M2, जब 1 kg था, है ना, डिस्टेंस उनका 1 मीटर लिए, उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जो है वो क्या आएगी? 6 पॉइंट, क्योंकि F इज इक्वल्स टू G हो जाएगा। F इज इक्वल्स टू G हो जाएगा कब? जब मासेस 1 kg है और रेडियस भी 1 मीटर है, उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उन दोनों के बीच में कितना आएगा? 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन। अब माइनस 11 ऊपर है, इसका मतलब दैट वैल्यू इज वेरी स्मॉल, दैट वैल्यू इज वेरी स्मॉल, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम है अगर मासेस तुम्हारे बहुत कम है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा? अर्थ का मास जो है बॉल 1 kg का ही है, अर्थ के सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और अर्थ उस पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, अर्थ उस बॉल पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, ये हमने कैलकुलेट किया। वही फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू G इंटू M1 इंटू M अपॉन R²। सिर्फ ये एक मास जो है ना, यहाँ पे वही वैल्यू है 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। मास बॉल का भी 1 kg ही है, सिर्फ मास अर्थ का बढ़ गया, वो है 6 इंटू 10 टू द पावर 24। रेडियस जो है अर्थ का लिया हमने 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, है ना। ये वैल्यू जब हमने कैलकुलेट किए तो आंसर आया हमारा 9.8 न्यूटन, है ना। कंपैरिजन जो है, कंपैरिजन करो तुम 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन और 9.8 न्यूटन, there is a large difference between the gravitational force of attraction when the two bodies are very small, उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, लेकिन जब अर्थ का मास इतना लार्ज है वो रखे हमने और अर्थ जो है वो एक 1 kg बॉल के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रही है, वो उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट किए तो वो आई 9.8 न्यूटन। दैट इज अ वेरी लार्ज फोर्स, दैट इज अ वेरी लार्ज फोर्स। अब हम अगर सपोज वैल्यू जो है, अगर हम अर्थ और मून के बीच में का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, है ना। नाउ यू कैन इमेजिन दैट इफ वी आर कैलकुलेटिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द मून, मून की भी यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, है ना। समझ में आ रहा क्या? और जब हम अर्थ और मून के बीच में का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकली हम करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? उसकी वैल्यू कितनी आती है? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द मून, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज between earth and moon is found to be 2.01 into 10 to the power 20 Newton. 2.01 into 10 to the power 20 Newton. Very large gravitational force of attraction. अर्थ और मून जो है वो दोनों ही बहुत लार्ज मासेस है और उनके बीच में का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है? 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन। ठीक है, मतलब हमने ये देखा। अब तीन फोर्सेस हमने देख लिए, है ना, तीन फोर्सेस। जब मास जो है M1 M2 सिर्फ और सिर्फ 1 kg है, इन दोनों के बीच में का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितना है? 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन। ये फर्स्ट देखे हमने। फिर हमने देखे अर्थ और एक बॉल के बीच में का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कितना आया हमारा?
सेकेंड 9.8 न्यूटन, और ये भी कैलकुलेट करेंगे हम अर्थ और मून का इसी फॉर्मूले से, तो आया कितना हमारा 2.01 into 10 to the power 20 newtons. Means as the masses are increasing, the force of gravitation between the two masses is also increasing. ठीक है? So I hope you have understood the introduction part of gravitation chapter. So I am concluding here. We'll study in our next lecture for the chapter.